Yes, उसके बाद sir. Last class. कुछ, हाँ लास्ट क्लास में इंडिकेटर्स हुआ था। उसके बाद कुछ बताए थे आज क्या करवाने वाले थे। चलो ये बताओ, इन एसिड मीडियम, अच्छा ठीक है, पहले ये पूछते हैं यहाँ पर अपन से। आयुष, आयुष ये बताओ, इंडिकेटर क्या होता है? व्हाट इज इंडिकेटर? आयुष, व्हाट इज इंडिकेटर? Sir, can I tell? Sir, can I tell? Sir, may I tell? Sir, can I? Sir, may I tell, Arpana? हाँ बताओ, कोई भी बताओ। चलो नल नहीं है, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। Substance or compound which indicates as acid and base is called indicator. It indicates acid and base by changing their color. अच्छा ओके, ओके आलूसी, give me example of two natural indicators. Two examples of natural indicators. कोई भी बताओ, two indicators of natural indicator. Sir, can I tell? अपना बताओ। Two examples अच्छा एक of सेकंड, natural. एक सेकंड, एक सेकंड, प्राप्ति बोल रहे थे क्या? आवाज नहीं आ रहा है अच्छा तुम्हारा एकदम भी। Sir, are Can you hear me now? यस, Yes, हाँ sir. अब बताओ अब। हाँ अब बताओ, अब आवाज आ रहा है। The two example of natural indicator are turmeric powder and red cabbage. अच्छा ठीक है, कल्पना प्राप्ति आंसर दिए, चलो ठीक है। बाकी बच्चों बताओ, कौन है और? नीलांजन, नीलांजन, टू मैन मेड इंडिकेटर, एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड इंडिकेटर। Sir, examples of man-made indicators are litmus, methyl orange, and phenolphthalein. फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन, ओके, ओके। सिर्फ आंसर नहीं आया आरुषि से और आयुष से। आरुषि एंड आयुष, कैन यू हियर मी? Yes, sir. आरुषि कैन हियर, ओके। आरुषि बताओ, व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक
in acid medium? Sir, it stays yellow. It stays yellow. Okay. Now tell me, open to all. What is the color of turmeric in base medium? Sir, it turns red. It turns red. Okay, very good. ठीक है. Arpana, what is the color of red cabbage in acid medium? Sir, no changes in color. No changes in color. So what is the color? It will remain. Sir, it will remain in reddish purple color. Okay, very good. Nilanjan, what is the color of red cabbage in base medium? Sir, red cabbage in base medium. Sir, it will be green Yes. or blue. Okay, it will be green or blue. Very good. वो जितना मतलब okay. Shapti बताओ, what is the color of litmus in acid medium? Sir, the litmus color will be changed into red in acid medium. Red into acid medium. From which color to red? Sir, blue color to red color. From blue color to red color. Very good. Okay. Okay. Now again it goes to Alusi. Alusi, what is the color change from in in base medium of litmus? In base medium, no voice is coming. Yes, sir. बताओ. अच्छा चलो ये तो स्टैंड ये बताओ. देवायन बताओ. देवायन अभी अभी ज्वाइन किए. देवायन बताओ. देवायन बताओ, व्हाट इज द कलर चेंज ऑफ लिटमस इन बेस मीडियम? Color change of litmus in base medium. No voice is coming. Mic recheck करो. Hello. Anyone? I'm not Yes, getting sir, any can I? voice. Yes, बताओ. Sir, it will change from red to blue. It will change from red to blue. Okay. Okay. Arpana, what is salt? Sir, salt is the compound which is formed by the reaction of acid plus base is called salt. Okay. Ayush, can you hear me? Voice आ रहा है आयुष? अच्छा, आलूसी बताओ. How many types of salts are there? Okay, anyone? Sir, can I? Yes, sir. Hmm. Can I? बताओ.
Sir, neutral बताओ salt, आपकी। acidic salt, and basic salt. अच्छा ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है? व्हाट इज न्यूट्रल सॉल्ट? Sir, salt formed by reaction by strong acid plus strong base. For example, HCl. HCl. Okay. Devayan, what is acidic salt? Nilanjan, what is acidic salt? Sir, salt formed by reaction between strong acid and weak base are known as acidic salt. Okay. H2SO4 One plus example. magnesium plus MgSO4 plus HO2 H2O is equal to acidic salt. H2O. Okay. Okay. H2SO4 plus magnesium, or it is magnesium hydroxide? Sir, magnesium hydroxide it is. Magnesium hydroxide it is. Okay. What is the formula of magnesium hydroxide? Sir, MgOH whole 2. MgOH whole 2. Okay. Next, आरुषि बताओ, what is basic salt? Sir, nitrate. Devayan. Okay. Yes, second. बताओ। बताओ। Yes, sir, बता रहा हूँ. हम्म, Sir, salt formed by reaction by weak acid and strong base. weak acid and strong base. अच्छा ठीक है, उसका हम बोलते हैं बेसिक सॉल्ट। एग्जांपल दो। Sir, HCOOH plus KOH is equal to HCOOK plus H2O. ओके। H2OH is which acid? Sir, Anyone? sir, acetic acid. Sir, which acid you please No. repeat? Sir, H2OH. COOH. हाँ, Formic acid. Sir, formic acid. formic acid. Very good. It is formic acid. Okay. Okay. It is formic acid. ओके चलो, आपने रिवीजन किए हो, ये पता चल रहा है कि मेरा रिवीजन हो चुका है, मतलब पढ़ाई किए हो। हम लोग इसमें क्या पढ़ाने वाले थे आज? कुछ एक टॉपिक बोले थे ना पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बचा हुआ था। अच्छा हाँ ठीक है। रिगार्डिंग स्ट्रेंथ पढ़ाएंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस।
तो देखो बच्चों, जब स्ट्रेंथ का बात होता है, स्ट्रेंथ, तो हम लोग क्या बोलते हैं? किसी का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, किसी का स्ट्रेंथ कम होता है। तो जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग पर्सन। जिसका स्ट्रेंथ कम होता है दैट इज वीक पर्सन, वीकर वन। तो अभी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, इन सब का डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. फिर एग्जाम्पल्स भी याद है। Yes, sir. ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि वही वो जो स्ट्रॉन्ग या वीक है उसका मेजरमेंट एक टर्म से करेंगे। वो मेजरमेंट हम लोग देखेंगे, ठीक है? वो मेजरमेंट होगा, जो स्ट्रेंथ हम लोग मेजरमेंट करेंगे वो मेजर होगा बाय पीएच स्केल, ठीक है? ये जो टर्म है पीएच या पीएच स्केल, ये टर्म अभी स्पेशली अभी के टाइम पे हम लोग न्यूज में या एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स में बहुत सुने होंगे। पीएच, वाटर का पीएच खराब हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्पेशली आरओ से, आरओ का जो ऐड आता है उसमें हम लोग पीएच टर्म सुने होंगे। फिर और भी बहुत सारे एड्स आते हैं जिसमें पीएच टर्म सुने होते हैं। तो पहले ये बताओ कि पीएच टर्म कौन कौन सुने हो, कौन कौन पीएच टर्म कभी भी सुने? Yes, sir. मैं सुनी हूँ. ठीक है, तो पीएच होता क्या है? देखो, ये पीएच का मतलब होता है, पीएच स्केल से हम लोग ये पता करते हैं, फ्रॉम द पीएच स्केल वी कैन आइडेंटिफाई दैट व्हिच एसिड इज स्ट्रॉन्ग और व्हिच बेस इज स्ट्रॉन्ग। ओके, तो पीएच का मतलब हुआ पी फॉर पोटेंज, ठीक है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज का मतलब होता है पावर, ठीक है? पोटेंज का मतलब होता है पावर। दैट मीन बेसिकली पीएच का डेफिनेशन क्या बना? पावर ऑफ The हाइड्रोजन, power of hydrogen. पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? अब देखो, ये जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है इससे हम तो पता चल रहा है, ठीक है? पावर ऑफ हाइड्रोजन से हम लोग पता चलेगा कि व्हिच एसिड इज स्ट्रॉन्ग और व्हिच बेस इज स्ट्रॉन्ग। तो ये जो पोटेंट वर्ड है ना, पोटेंट इंग्लिश वर्ड या इंडियन वर्ड नहीं है। पोटेंट जो है, पोटेंट का मतलब ये जो पावर है ये जर्मनी में होता है, जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है? ये जर्मन लैंग्वेज है, तो जहाँ पोटेंट का मतलब होता है पावर। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एसिड का डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे? एसिड का डेफिनेशन पढ़े थे, सब्सटेंस Sir, something which is stored in test. क्या Sir, बोले? those substances which are sour in Sir, taste are substance which called are stored acid. in test. हाँ, तो हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट आर एसिड। तो वैसे ही क्या होता है ना, जो एसिड होता है, सोर टेस्ट तो होता है, वो हाइड्रोजन प्लस आयन, ठीक है, रिलीज करता है इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम। एक्वस का क्या मतलब होता है? वाटर, Sir, butter. यस। तो एसिड जो होता है ना, एसिड, तो हर एक एसिड, एवरी एसिड releases H plus ion in aqueous medium. Now the question is, where the H
प्लस आर कमिंग। तो देखो हम लोग जितने भी एसिड पढ़े हैं, हॉलेट एसिड में, सॉरी, हॉलेट एसिड में हाइड्रोजन है। फॉर्मूला जो भी लिखाए थे उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा ख्याल करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर देखो, जो क्लास हम लोग किए थे टू विथ अदो, स्ट्रॉन्ग एसिड वगैरह में भी हाइड्रोजन है। सब में हाइड्रोजन है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, हाइड्रोजन प्रेजेंट। H2SO4, हाइड्रोजन प्रेजेंट। नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन प्रेजेंट। ठीक है। फिर जाता देखो वीक एसिड, कहाँ गया? सर वीक एसिड में वीक एसिड देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है। फिर फॉर्मिक एसिड दिखाई दे रहे तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन मेरा प्रेजेंट रहेगा। तो यस सर। एसिड रिलीजेस दिस हाइड्रोजन। एसिड क्या करता है कि ये हाइड्रोजन को रिलीज करता है। ठीक है। तो हर एक एसिड जब ये H+ रिलीज करता है तो उससे पता चलता है कि वो एक एसिड है। इसलिए हम लोगों ने वो फॉर्मूला में बता दिए थे कि ये सारे फॉर्मूला याद रखना, तो यहाँ से हमको एसिड पता चलेगा। तो अभी देखो, जो एसिड जितना द एसिड which releases H+ ions more, it will be strong acid। क्योंकि एसिड का प्रॉपर्टी क्या है? टू डोनेट H+। Now the acid which donates more H+, it has more number of H+ ion, that means it is a strong acid। But the acid which releases less number of hydrogen plus ion is known as weak acid। ठीक। अभी मेरे पास अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हम हाइड्रोजन डोनेट भी नहीं कर पाएंगे, दैट मीन आई एम वीकर। लेकिन अगर आयुष के पास सपोज बहुत सारे हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन डोनेट भी करेगा, दैट मीन ही इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड डोनेट लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन, एंड जो वीक एसिड्स होते हैं इट डोनेट लेस नंबर ऑफ H+ आयन। ठीक है। अभी जैसे मान लो ये कोरोना की वजह से जितने भी क्राइसिस हो रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, जैसे कि वो बोल रहे बेसिकली, तो उनको डोनेशन चाहिए। तो अभी डोनेशन कौन करेगा? जो इकोनॉमिकली रिच Sir, पर्सन है। what is written? Sir, H+ ion then? हेयर Yes, sir. रिलीज, RELEASES, रिलीज इन एक्वस मीडियम। तो हम लोग क्या बोल रहे थे? हाँ, अगर डोनेशन करना है अभी इंडियन गवर्नमेंट को तो डोनेशन कौन करेगा? जो इकोनॉमिकली बहुत ही रिच पर्सन है। तो वो लोग क्या स्ट्रॉन्गर पर्सन है। इन विच फ्रंट ऑफ, इन विच व्यू दे आर स्ट्रॉन्गर इन व्यू ऑफ मनी। ठीक है। वो डोनेशन कर रहे, बिलियंस में डोनेशन कर रहे, मिलियंस में डोनेशन कर रहे, बट वी आर नॉट एबल टू डोनेट सच काइंड ऑफ डोनेशन होते। तो similar way, in similar way, strong acid donates more number of H+ ion and weak acid donates less number of H+ ion। जैसे अंबानी अगर अभी डोनेशन दे रहा है तो वो मिलियंस में दे रहा है, रतन टाटा जी डोनेशन दे रहे हैं वो भी मिलियंस पे दे रहे हैं। बट हम लोग कितना डोनेशन दे पाएंगे? 1000, 50,000, 10,000, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा तो नहीं। तो दे आर स्ट्रॉन्गर पर्सन इन व्यू ऑफ मनी बट वी आर नॉट। So
ये क्या हुआ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी वैसे ही, द एसिड विच डोनेट्स मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द एसिड विच डोनेट्स लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन इज वीक एसिड। ये बात समझ में आया? Yes, sir. किसी को Yes, इसमें sir. डाउट है? No, No, sir. sir. No, No, sir. No. ठीक है, तो एसिड का मतलब होता है कि एक तो हम लोग डेफिनेशन पढ़े, एसिड इज सोर इन टेस्ट। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं दो सब्सटेंसेस which release H plus ion in aqueous medium are also acid. Now, the acid which donates more number H plus is a strong acid, and which donates less number H plus is weak acid. Okay. Now, so what is pH itself? What is power of hydrogen? What is potential of hydrogen? ना देखो, जितने H प्लस प्रोड्यूस होगा एक्वस मीडियम में, H प्लस का पावर उतना बढ़ेगा, क्योंकि एक्वस मीडियम में बहुत सारे H प्लस कलेक्ट हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहा है, तो एक्वस मीडियम में H प्लस का पावर बढ़ जाना। तो H प्लस के पावर से हम लोग बोल सकते हैं कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस है। ठीक, अभी ये पीएच एक स्केल क्यों बोला गया? बिकॉज नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूम टेम्परेचर, कितना होता है रूम टेम्परेचर? एज सर हाँ, सर गर्मी के टाइम में ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री, और गर्मी हो या सर्दी हो या रेनी सीजन हो, विंटर हो, स्प्रिंग हो, ऑटम हो, कुछ भी सीजन चल रहा हो, अगर रूम टेम्परेचर हम लोग एजम्पशन लेते हैं 25 डिग्री, दैट इज रूम टेम्परेचर। मतलब एक नॉर्मल कंडीशन का जो टेम्परेचर होता है एक रूम में स्टे करने का, दैट इज 25 डिग्री लास्ट। तो मैं 25 तो रूम टेम्परेचर मानते, तो 25 डिग्री सेल्सियस में वाटर का एक मतलब नॉर्मली एक हम लोग ये देखते हैं पीएच का एक रेंज मिलता है। ठीक है, एसिड मीडियम से लेकर बेस मीडियम का एक रेंज मिलता है। वो रेंज कहाँ से होता है? वो रेंज स्टार्ट होता है 0 से और ये जाकर खत्म होता है 14 पे। 0 से स्टार्ट होकर ये रेंज जाकर खत्म हुआ 14 पे, बीच में कहीं एक आइडल वैल्यू, मिडिल वैल्यू दैट इज 7। ठीक है, तो दिस इज पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल क्या है कि पीएच स्केल है मेरा एक स्केल जिसमें 0 से लेकर 14 तक का एक वैल्यू दिया हुआ रहता है, वो भी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है, जिससे हमको पता चलता है कि वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है या बेसिक बिहेवियर, कोई भी सब्सटेंस, या फिर न्यूट्रल है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 0 के बाद वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो देखो 0 और 14 ये तो समझ में आ रहा है कि किसी भी एक तरफ एसिडिक होगा, किसी भी एक तरफ बेसिक होगा, बीच वाला क्या रहेगा? सर सॉल्ट। बीच वाला सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? Sir, neutral सर salt. न्यूट्रल सॉल्ट। यस, बीच वाला होगा मेरा न्यूट्रल सॉल्ट। दैट मीन जो 7 पीएच हो रहा है, इट शोज न्यूट्रल, ओके, न्यूट्रल नेचर शो कर रहा है 7। अब एसिड किधर होगा? इधर एसिड होगा या इधर एसिड होगा? एसिड मेरा होगा इधर।
सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, ठीक है, एसिडिक नेचर, ठीक है। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर। बेस। दैट्स मीन अगर हम लोग अच्छे से फॉलो करें तो क्या देखने को मिल रहा है, देखो 7 न्यूट्रल है, इधर से हम लोग इधर जा रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और इधर से अगर इधर जा रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो देखो हम लोग बोल सकते हैं कि 7 इज द वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, एंड 7 से जितना वैल्यू डिक्रीज होगा उतना मेरा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, 7 से जितना मेरा वैल्यू इंक्रीज होगा उतना मेरा बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यस That's सर। when we can say that lower, ये सब pH का वैल्यू है, ठीक है, pH 0, pH 1, pH 2, pH 3। तो यहाँ से बताओ pH 7 इज न्यूट्रल, pH 0 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और यस pH सर। 4 इज स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस। बेस। तो अगर कहीं पर दिया हुआ है कि लोअर द वैल्यू ऑफ pH, lower the value of pH means it will higher acidic, मतलब more acidic or less acidic, मोर एसिडिक। सर मोर एसिडिक। more acidic। lower the value of pH means more acidic, and जितने higher की तरफ जाएंगे higher the value of pH means मोर more बेस। सर more मोर base, बेस। ठीक है। सर इसमें मोर किसी बेस। को डाउट है? हाँ, इसमें किसी को डाउट है अभी तक? नो सर। ठीक है, देखो पीएच का जो डेफिनेशन होता है ना, ये तो हुआ उसका कॉन्सेप्ट पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन, इसका एक डेफिनेशन आता है जो हम लोग क्लास 10 में जाकर देखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन जिस हिसाब से रिप्रेजेंट रहता है वो अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो टॉपिक ही अभी सिलेबस में नहीं है अप टू 9। तो जब हम लोग लॉगरिथम सीरीज पढ़ लेंगे, एक सीरीज आएगा मैथ में, तो उसके बाद हम लोग क्लास 10 में जाकर पीएच का फिर से डेफिनेशन देखेंगे, और कैसे पीएच कैलकुलेट करते हैं कि ये 1, 2, 7, 14 ये वैल्यू कैसा है, ये हम लोग क्लास 10 में जाकर देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना बता दिए कि एक पीएच स्केल होता है जिससे हम लोग को पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है वो पता चल जाएगा। तो पीएच होता क्या है, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंट, जिसका जर्मनी में मीनिंग होता है पावर, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का जितना पावर उतना वो एसिड, जितना कम उतना वो लेस एसिड। अब पीएच लोअर होगा तो मोर एसिडिक, हायर पीएच होगा मोर बेसिक। तो हमको अभी एक बात बताओ, सपोज 2 एसिड प्रेजेंट होते हैं, HCl एंड H2SO4, ठीक है। HCl का पीएच दिया हुआ है 2.5 एंड H2SO4 का पीएच दिया हुआ है 2.7, which one is more acidic? सर 2.5 इज मोर एसिडिक। यस सर 2.5 इज मोर एसिडिक। अच्छा, बाकी सब भी बता लो 2.5, यस या सर। कोई भी है जो बोल रहे हो कि 2.7? किसी को डाउट है कि 2.5 मोर एसिडिक नहीं होगा? किसी को डाउट है तो वो पहले बताओ। HCl will be more acidic because it has lower pH in comparison to H2SO4.
ठीक है, अभी हम लोग मान लेते हैं कि चलो एक बेस लेते हैं, NaOH ले रहे एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे, इसका pH दे रखा है 12.3, इसका pH दे रखा है 10.2. Now tell me which one is Sir, strong base? हाँ 12.3 means NaHO, NaOH is more basic. Sir, NaOH please is more. repeat the question. I have some network issue. Then Sir. that I can't understand the Okay. question. I'm asking that we have two base. One is sodium hydroxide, that is NaOH, and another one is magnesium hydroxide, that is MgOH also. Now the pH of NaOH is 12.3 and pH of magnesium hydroxide is 10.2. Now the question is, which one is strong base between NaOH and MgOH also? Sir, sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Everyone says 12.3, that is NaOH is strong base. Yes, The sir. sodium hydroxide is the strong base. Okay, so NaOH is a strong base. तो जितना मेरा pH lower होगा, lower the value of pH, it will be the more acidic. Higher the value of pH, it will be the more basic. ठीक है, बेस होने के लिए pH ज्यादा होना चाहिए और एसिड स्ट्रॉन्ग होने के लिए pH का वैल्यू लेस होना चाहिए। आए बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, Yes, नोट डाउन sir. करो। ओके, अब शुरू से एक बार नोट डाउन कर लो, जिनका सर नहीं हो हुआ गया है वो नोट डाउन? Sir, completed. सबका Yes, हुआ है। sir. Yes, sir. ओके, सर ये लास्ट वाला HCl वाला नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, चलो तब इसको नोट डाउन कर लो। Sir, Sir, done. ओके, ठीक है, एक बार सिर्फ जल्दी से देख लो तुम लोग के पास जो भी बुक्स है जो स्कूल में फॉलो हो रहा है, कुछ और टॉपिक है क्या जो नहीं बताए हैं? ऐसा तो टॉपिक रह गया क्या जो नहीं बताए हैं? एक बार सिर्फ जल्दी से देख कर बता। आई डोंट थिंक कि कुछ छूटा है। Sir, naming of salt was completed. Naming of salt. नेमिंग ऑफ सॉल्ट, हम लोग सारे सॉल्ट में जितने भी सॉल्ट प्रिपेयर किए उसका नेमिंग बता दिए थे ना। नहीं सर, यहाँ पर तो Sir, salt of यहाँ पर sulfuric जो भी acid है is named as sulfates, chlorates, सर यहाँ पर sulfates, सर सर यहाँ पर है। सर यहाँ पर आप अच्छा। न्यूट्रल सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट ये सब बताए थे, उन सब का एग्जांपल दे दिए थे। नहीं अच्छा सर, ठीक है, हम नेमिंग ये नहीं बोल रहे हैं सर। सर नेमिंग ऑफ सॉल्ट अलग ठीक है, से है। अलग से है ना। अच्छा ठीक है, वो कुछ नहीं है, बता दे रहे, ठीक है। और कुछ है? सर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट भी है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट भी है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट क्या होता है? देखो, एसिडिक सॉल्ट का प्रॉपर्टी एसिड जैसा होता है, वो मोर एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। बेसिक सॉल्ट का प्रॉपर्टी बेस जैसा शो करेगा, और न्यूट्रल सॉल्ट ना एसिड जैसा शो करेगा ना ही बेस जैसा। सर दैट इज ओनली अब रिटन इन द एसिडिक, प्रॉपर्टीज। अब उसमें और क्या ऐड कर सकते हो? जैसे एसिडिक सॉल्ट है तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो एसिडिक सॉल्ट का अगर कोई भी सॉल्यूशन लेंगे उसमें अगर ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो कैसा कलर चेंज करेगा? ब्लू टू रेड, क्योंकि वो एसिडिक प्रॉपर्टी अभी भी है। हाँ, और बेसिक सॉल्ट में रेड लिटमस डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा।
न्यूट्रल सॉल्ट में डालेंगे Yes, तो ही sir. चेंज नहीं होगा। फिर ये होगा प्रॉपर्टी। उसके बाद बहुत सारे, चलो ठीक है हम वो और एक बार डिस्कस कर दिलो। और वो बताओ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट है, नेमिंग ऑफ सॉल्ट और कुछ है? No, sir. ठीक है, नहीं है ना? श्योर सब पे देख लिया? Yes, sir. ठीक है, एक बार सब पे चेक कर लेना। ठीक है, तो चलो एक बार नेमिंग ऑफ सॉल्ट हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो नेमिंग ऑफ सॉल्ट वेरी इजी। सिर्फ हमको जो एनायन वाला पोर्शन है ना उसका नेम याद रखना है। जैसे मान लो कि Cl है, तो Cl माइनस स्टेट पे होता है, इसका नेम होता है क्लोराइड। फिर जाकर हमको मिलेगा SO4 2 माइनस, SO4 जहाँ भी मिलेगा SO4 उसको हम लोग बोलेंगे सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे फ्लोरीन अगर रहा तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लोराइड। ब्रोमीन अगर रहा तो इट विल बी ब्रोमाइड। सपोज मेरे पास है CO3, तो CO3 तो बोला जाता है कार्बोनेट। देखो हम ये चार्ज लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये चार्ज अगर याद नहीं भी रहे तो भी ठीक है, क्योंकि CO3 देखोगे मतलब वो कार्बोनेट है, SO4 देखोगे मतलब वो सल्फेट है, ये लेफ्ट देखोगे या Br देखोगे तो वो क्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड ही है। सर सर थोड़ा कैमरा ऊपर कीजिए। सर ये क्लोराइड के मतलब Cl के ऊपर में डैश क्यों है? ये सर थोड़ा सा सर कैमरा ऊपर क्लोराइड और कीजिए। फ्लोरीन ये सब के ऊपर में है एक डैश। और ऊपर एक सेकंड, और ऊपर यस सर। सर ऊपर की तरफ। सर ऊपर मतलब वो ऊपर का देखना चाहता है शायद। और यस सर। यस सर डन। ये डैश नहीं है, ये माइनस है। ओके सर। Cl 1 माइनस है, वैलेंसी है क्या? ठीक है? हाँ वैलेंसी है। फ्लोरीन 1 माइनस है, ब्रोमीन 1 माइनस है, SO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस, ये सब वैलेंसी है या फिर चार्ज भी बोल सकते हैं। सर सॉल्ट ऑलवेज माइनस में होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, सॉल्ट माइनस में क्यों होगा? सॉल्ट तो न्यू मतलब चार्ज लेस होगा ना, एक तरफ का चार्ज रहेगा एक तरफ का चार्ज रहेगा इसलिए। ठीक है, तो CO3 का होता है कार्बोनेट। अगर कहीं पर दिख रहा है HCO3 तो HCO3 को बोलते हैं बाई कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। सर बाई होने से H हो जाता है ना? हाँ बाई होने से H हो जाता है। सर वो क्या लिखा हुआ है फ्लोरीन के फ्लोराइड के नीचे में? ब्रोमाइड, सर स्पेलिंग? BROMIDE। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो देखो अभी अगर कोई भी सॉल्ट बन रहा है, और एक याद रखना ये वाला HCOO, ये सब माइनस है सर पे, ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस है, इसको बोला जाता है फॉर्मेट। ये नेम से याद होना चाहिए, CH3 COO माइनस, इसको बोला जाता है एसीटेट। ठीक, अब हम लोग जब भी नेमिंग करेंगे ना तो नेमिंग स्टार्ट करेंगे मेटल से। ठीक है, मतलब कोई भी एक सॉल्ट लेंगे तो उस सॉल्ट में जो मेटल है उसका नाम लेना है और उसके बाद इसको ऐड कर देना है, ये सब। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर एग्जांपल्स में आते हैं, जैसे यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है देखो, NaCl। तो Na मेरा क्या होता है? Na होता है सर सोडियम।
सोडियम। सोडियम। और Cl का क्या नेम बताए? सर क्लोराइड। 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 तो बस उसको ऐड कर दो, सोडियम क्लोराइड हो गया। हमको स्टार्टिंग करना है मेटल वाले पोर्शन से, ठीक है। मेटल का नेमिंग पहले लेना है, उसके बाद नेगेटिव वाले का नेमिंग लेना है। मतलब पहले पॉजिटिव वाले का नेमिंग लिया जाता है। तो सोडियम मेरा पॉजिटिव होता, क्योंकि Cl तो नेगेटिव बता दिया, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखो, अच्छा और एक चीज यहाँ पर, यहाँ से देखे तो याद आया, इसको भी याद रखना। OH माइनस, ये तो बेस है। अच्छा ये तो सॉल्ट नहीं बनाएगा, ये तो बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो MgSO4, हम लोग SO4 देखे अभी, क्या बोले SO4 को? सर सल्फेट। सल्फेट। और ये Mg क्या होता है? सर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो क्या हो जाएगा नेम? मैग्नीशियम मैग्नीशियम सल्फेट। सल्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट। तो हम लोग यहाँ पर वही बता रहे कि हम तो पहले पॉजिटिव वाला नेमिंग लेना है, फिर जाकर नेगेटिव वाला नेमिंग लेना है। और पॉजिटिव वाला तो ऑलमोस्ट आई थिंक पता ही है, सोडियम पोटेशियम यही सब मेरा होता है। यस। तो जैसे कि मान लो अगर बता ले Na2CO3, तो CO3 का मतलब क्या होता है? कार्बोनेट। और Na मतलब हो गया सोडियम। सोडियम। so its name will be सोडियम सर सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। चलो इसका नेम बताओ। NaHCO3, it will be सर सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट। yes, it will be सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यस सर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। चलो अब इसका नेमिंग बताओ। HCOONA, तो HC, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर फॉर्मेट। फॉर्मेट। और मेटल सर कौन है? फॉर्मेट। हाँ सोडियम। फॉर्मेट बोलते सर हैं। सोडियम। सोडियम। तो नेम क्या होगा? पहले किसको लेंगे? पहले फॉर्मेट सर लिया, सोडियम सर सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट। हाँ सोडियम फॉर्मेट। पहले मेटल का नेमिंग लिखना है, तो सोडियम फॉर्मेट। इसका क्या होगा? सर पोटासियम एसीटेट। बताओ। सर पोटेशियम पोटासियम एसीटेट। एसीटेट। अच्छा और कोई कुछ बोल रहे थे? सेम है सब कुछ, सेम बता रहे हो या फिर चेंज होगा? सर सेम होगा। सेम होगा, इट विल बी पोटेशियम एसीटेट, ठीक है। ये एसीटेट वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम लोग सारे नेमिंग करेंगे। पहले मेटल बिठा देंगे, फिर जाकर हम लोग पहले मेटल का नेम बिठाएंगे, उसके बाद नॉन मेटल का। ये क्या है? सर ZnSO4। ZnSO4। Zn मतलब सर जिंक सल्फेट। सर जिंक। जिंक और सर सल्फेट जिंक होगा। सल्फेट। हाँ जिंक और सल्फेट मतलब जिंक सल्फेट होगा। तो बस दिस इज द नेमिंग ऑफ सॉल्ट। हम लोग नेमिंग ऑफ सॉल्ट ऐसे करेंगे। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई डाउट है अभी तक इसमें? नो सर। ओके चलो अब हम लोग देखेंगे जो तुम बताई थी। चलो नोट डाउन हो गया सबका? यस सर। यस सर। ओके
अब हम लोग जो बोल रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट बोले ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट का प्रॉपर्टी तो हम लोग अलग अलग बोलेंगे ना, न्यूट्रल सॉल्ट का प्रॉपर्टी अलग होगा, मतलब मोर और लेस सेम होगा। तो सॉल्ट क्या होते हैं कि एसिडिक सॉल्ट जो होगा, एसिडिक सॉल्ट वो एसिडिक इन नेचर, विल बी एसिडिक इन नेचर, ठीक है, वो एसिडिक तो चलेगा। अगर इसमें हम लोग ब्लू लिटमस तो डाले, ब्लू लिटमस changes into Red. red in acidic salt solution, acidic salt solution, acidic salt solution। सिमिलरली जो बेसिक सॉल्ट होगा, तो बेसिक सॉल्ट क्या होगा, बेसिक सॉल्ट विल बी बेसिक इन नेचर, ठीक है। रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा, रेड लिटमस टू ब्लू होगा। न्यूट्रल सॉल्ट हैज नो कलर चेंज, नो चेंज ऑफ कलर इन लिटमस, लिटमस में कोई कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रल सॉल्ट तो न्यूट्रल है। एसिडिक सॉल्ट का पीएच रेंज कितना होगा बताओ तो, इसका पीएच रेंज कितना होगा एसिडिक सॉल्ट का? Sir, 0 to 7, 0 to 6. 0 to 6 नहीं, 0 to 7 ही उसको लिखेंगे। बेसिक सॉल्ट का 7 to 14. Sir, 7 to 7 to 14. 14, हाँ। बेसिकली वो 6.9 तक जाता है और ये 7.1 तक होता है, लेकिन हम लोग 0 to 7 बोलेंगे। और न्यूट्रल सॉल्ट का तो पीएच 7 में बरकरार रहेगा, रहेगा, ठीक है। तो ये सारे लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट में। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए। ऊपर करे इधर, सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए। मतलब ऊपर का देतना है या नीचे वाला देतना है? सर नीचे वाला सॉल्ट वाला। लो, और सर थोड़ा लेफ्ट कीजिए। लेफ्ट में सिर्फ हेडिंग है। सर थोड़ा सा कीजिए। हाँ सर, ठीक है सर। हाँ। Sir, okay. ओके, सबका हुआ? Yes, sir, completed. तो देखो चैप्टर भी मेरा कंप्लीट हो गया है, सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं और रिवीजन भी हम लोग Okay, sir. पूछ लिए, क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
सर इस कौन? चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हो गया? नहीं, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ, मतलब आज हम सिर्फ तुम लोगों से रिवीजन की तरह पूछे। एक प्रॉपर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हम लोग करेंगे। अ, हो सकता है नेक्स्ट वीक भी कर सकते हैं या फिर उसके बाद भी कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा। ओके सर। ठीक है, अभी के लिए बताओ कि कोई डाउट है कि नहीं? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है अभी तक, कोई भी टॉपिक में, ये पूरे चैप्टर में, जिसको नो वापस सर। से बोलना है? नो सर। सर हाँ हेलो बोलो। सर। बोलो। सर हम लोगों का 19 से एग्जाम शुरू होगा। 19 से 19 जून। यस यस, सर। फर्स्ट एग्जाम साइंस का है। सर फर्स्ट एग्जाम साइंस का है तो केमिस्ट्री में चैप्टर 3 आएगा। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 3? सर सर चैप्टर 3 है आपका सर केमिकल यही तो है। सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस। केमिकल यस सर। सब्सटेंसेस। अच्छा ठीक है। कौन सा स्कूल में है ये? सर सर डीवी मॉडल। डीएवी सर मॉडल। डीवी मॉडल एंड डीएवी पब्लिक। अच्छा, डीएवी का है। ठीक है, कितने जन तुम लोग? सब डीएवी के हो या फिर कोई यस और सर। भी यस स्टूडेंट सर, हो? हम सब सर DAV का। एक सर पब्लिक से DAV है, का है। बाकी मॉडल। ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस स्टार्ट करेंगे और एग्जाम से पहले हो यस भी सर। जाएगा। ओके सर। 2 क्लास ओके सर। 3 क्लास मिलेगा ओके ना? सर। आज ओके सर। कितना है? एक सेकंड। आज हो गया 24। 24 यस के सर। बाद 31, 7, 14, आराम से 3 क्लास है, खत्म हो जाएगा केमिकल सब्सटेंसेस। कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। सर एक बार यहाँ तक सिलेबस कोई सेंड। डाउट? बस सेंड। सर सारा रूटीन एग्जाम का सेंड कर देंगे क्या? हाँ एक सर बार कर दो। सिलेबस। हाँ एक बार ओके सर। सिलेबस सेंड कर दो। ठीक ओके है, सर। सर किसका सिलेबस? जो तुम लोग का एग्जाम में आने वाला है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में केमिकल सब्सटेंसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज यहीं स्टॉप करते ओके हैं। सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना अभी तक? प्योर देख लो ऑल एक नो बार। सर। नो ठीक है, सर। ओके। ठीक है, तो सी यू इन ना नेक्स्ट क्लास। ओके। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ठीक है, चलो बाय। बाय सर, हैव अ Bye, गुड डे। sir. Have a nice day.